ओके, व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वी हैव 10 minutes into the market open. Let's just see what will be our bias for today. And this is what I think we are going to be bullish for the day because to be honest, see, I have not traded since Friday, I guess. Okay, okay, this was a trade which I have taken on Friday. This was just a random trade on my uh, competition account, CME competition account. ये रैंडम ट्रेड था, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ एंड आई हैव जस्ट टेकन दिस ट्रेड, सो यू जस्ट डोंट कंसिडर दिस. I Okay, the last trade which I had taken was, I guess, yeah, okay, this was a loss, and I guess on ES, maybe on ES, I guess. Okay, yeah, this is the trade. Let's get back to a 1 minute time frame. Oh, where has the trade disappeared? Shit, bro, I could not find that trade. Okay, this is the current market actually. Okay, I could not find that trade actually. Okay, here is the trade. Yep, here is a trade which I had taken on maybe on this was Wednesday, and after that I have not traded. Thursday I have not taken a trade, and on Friday I got a mail that my account is breached due to I have not subscribed. As I have mentioned earlier, मैंने पहले भी बताया था कि मैं नहीं करूँगा अभी subscription. And also what I am thinking is right now is I'll just trade demo this whole month of Ramzan because my thing is I will not get enough time to trade at market open. So इससे better है कि मैं रैंड डेमो ट्रेड ही कर लूँ. Okay, so coming back to today's bias, this is what I think we should move to the upside because we have made a London manipulation continuation. So London manipulation plus reversal and New York will continue to the upside. This is what I think. We don't have any hourly lows or hourly highs left to sweep. We have already swept all of these lows and highs. I'll just delete this Asian lows because these are swept out. And if I talk about, we have this hourly low which is pending here. Okay, this hourly low, this is already swept, this hourly low, and we have a 4 hour low at this point. Here we have a 4 hour low here. Actually the low is already swept, but let's see. This is what I think we should move to the upside and not to the downside because I don't find any reason to uh, go bearish today. All the liquidity are pending which are to the upside. ऊपर लिक्विडिटी बहुत पेंडिंग है, नीचे सिर्फ लंदन लोज बाकी है. ऊपर लंदन हाइज है, एशियन हाइज है, प्रीवियस डे हाइज है, एंड फ्राइडे का न्यूयॉर्क हाइज है, और ये प्रीवियस डे का हाइज है. कल तो मार्केट में कोई मूव नहीं था बिकॉज कल यूएस हॉलीडे था, बैंक हॉलीडे था. सो आई थिंक ये सब टारगेट्स हमें करना चाहिए आज के दिन में. And even if we come to the downside, we have this low and this low to target, and nothing, pretty much nothing besides this. This is what I think actually. Yup, this is what I think actually. Okay, we have a far more bigger divergence going on. Okay, no worries. This is the pre-market analysis, like post market analysis, pre-market analysis, you can say. And let's see how the market moves. We have all of these lows. The best possible reason, the best reason for me, अगर मैं आज का एनालिसिस कहूँ एक सिंपल वन लाइन स्टेटमेंट में, इज ईदर ऑफ द पेयर्स कम डाउन, स्वीप आउट दिस लंदन लोस. मेरे हिसाब से द बेस्ट शुड बी, आई गेस, ईएस. ईएस नीचे आ जाना चाहिए, लंदन लो स्वीप करना चाहिए, एंड नैस्डैक शुड रिमेन above these highs, and then from here following each and every confluence we could target all of these highs for today.
दिस इज़ माई बायस, और इस बायस कह सकते हो, और माई स्ट्रैटेजी इज़ डिफरेंट थिंग. दिस इज़ व्हाट आई एम विलिंग टू टारगेट फॉर टुडे. अगर इसके अलावा मार्केट कहीं मूव करता है, देन आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू ट्रेड, and I will try to scale my account. Okay, as you can see here, I have my paper trading account of 1 lakh dollars. The same thing, I will trade this account with the same set of prop firm rules: 6% initial target, 3% maximum drawdown, no consistency this time. Okay, so I'm going to risk as much as I want in a single trade if I'm confident in my setup, and let's see what happens. I'll guys keep you updated in this video. Okay, what's up, guys? Welcome back to another trade recap. And this is the trade which is currently running, and I'm in profit of around, see, this is my demo account, but no worries. I am just trying to sharp my skills, and देख सकते हो $1,800 profit running. And I have lost around 2000 since morning, but ये setup अच्छा था तो मैंने trade ले लिया. And I was a bit नॉट कॉन्फिडेंट इन दिस सेटअप. इसमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, बिकॉज सी क्या हो गया, मार्केट ओपन हुआ, वी स्वीप आउट द 5 मिनट लो विच आई हैव टॉक्ड अबाउट. सी यहाँ पर एन क्यू ने स्वीप किया ये लो को, एंड ई एस ने लंडन हाइस ले लिया. अब यहाँ से मार्केट ने एक डम दे दिया नीचे, जो कि उसे देना नहीं चाहिए था. ओके, वी हैव इन्वर्स्ड अ 5 मिनट गैप विच इज़ रियली गुड थिंग फॉर अस. आई थिंक वी शुड वेरी वेल मूव टू द अपसाइड, मोर टू द अपसाइड एक्चुअली, बिकॉज ये एक स्विफ्ट मूव है टू द डाउन साइड. ओके, and now the thing is, आई वॉज जस्ट वेटिंग. मैं बस रुका था एक 1 मिनट स्वीप का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, टू टारगेट दीज हाइज, बट मार्केट ने एक डम दे दिया नीचे इसकी वजह से. एंड यहाँ पर आने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं था. रिएक्शन इमीडिएट होना चाहिए था, बट इतना ही रिएक्शन मिला नहीं, तो फिर भी मैंने एंटर कर लिया. मेरे ट्रेडिंग ट्रेडिंग पता नहीं इसमें एंटर ही क्यों नहीं हुआ ऐसी. मैं फिर से अगर बाय करता हूँ आप लोग के सामने. वी आर डूइंग सम ब्रीफ डेली मेंटेनेंस. पेपर ट्रेडिंग विल बी बैक रियली सून. थैंक्स फॉर योर पेशेंस. सो ये हुआ मेरे साथ आज एक्चुअली. मैंने लिटरली बहुत ट्राई किया यहाँ पर एंटर करने का, बट ये पॉपअप अभी आ रहा है, पहले आया नहीं था पॉपअप. तो नो वरीज, एटलीस्ट मैंने MT5 में तो एंटर किया है. 3 लॉट बहुत ज़्यादा हो गया, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था लॉट साइजिंग का. 3 लॉट बहुत ज़्यादा था, इसीलिए प्रॉफिट में आने के बाद एक लॉट बुक कर दिया $600 ऑफ प्रॉफिट में, एंड ओनली $1,200. ओ शिट, ओ शिट, व्हाट द हेल इज़ दिस. ओ शिट ब्रो. ओके, मेरे जितने भी ऑर्डर्स थे अब यहाँ पर एग्जीक्यूट हुए, एंड दिस इज़ रियली बैड फॉर मी एक्चुअली. दिस इज़ रियली बैड ब्रो, दिस इज़ रियली बैड. आई कैनॉट डू एनीथिंग एक्चुअली. अगर ये काम भी करता है, ट्रेड होती भी है, तो दिस कैन बी सी मेंटेनेंस की वजह से ये हुआ है. बिकॉज मैंने लिटरली इतना स्पैम किया, 5 लॉट्स बाय बाय बाय, बिकॉज मुझे पता था ये सेटअप काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. बिकॉज जिस हिसाब से ये लिक्विडिटी के आने के बाद रिएक्शन हुआ, मुझे लगा विल नॉट मूव टू द अपसाइड, बट एटलीस्ट नाउ वी आर स्टार्टिंग. सो मैंने इसलिए 5 लॉट्स एंटर किया था, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स. बट मुझे नहीं पता था कि ये एक्चुअली वो ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ कभी. ये इशू मुझे अभी बताया गया, ठीक है. एंड लिटरली आई वॉज स्पैमिंग 5 5 5, तो लिटरली 20 लॉट्स हो गए इन टोटल, जो कि आप लोग देख सकते हो अभी. एंड इवन इफ आई लूज इन दिस ट्रेड, आई रीबैलेंस माई अकाउंट 1 लाख का, बिकॉज इट वॉज अ मिस्टेक फ्रॉम माई साइड. आई डिडंट न्यू लाइक ये भी हो सकता है कभी. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है. तो 5 लॉट्स ही होता तो आई गेस मेरी एंट्री यहाँ पर थी गाइज. लिटरली ये मेरी एंट्री थी. ये जो इन्वर्स हुआ ना 1 मिनट का गैप, यहाँ पर आई वॉज अबाउट टू एंटर विथ हार्डली एनी SL, लाइक 79 80 पॉइंट्स का. आई गेस 5 लॉट्स, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से इट वॉज जस्ट अबाउट $400, विच वॉज नॉट इवन 1% ऑफ माई अकाउंट. बट अभी इतना मैं गलती की वजह से डेमो में भी, आई गेस आई विल जस्ट डू इट ब्रेक इवन. अभी देखो SL करने जाऊँगा, सी मेंटेनेंस का बता रहा है, सो SL भी नहीं लग पा रहा है, तो मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा. नो वरीज, कोई इशू नहीं है मुझे, बट एटलीस्ट पता चला कि इसका मेंटेनेंस की वजह से इशू है. एंड वेरी वेल, दिस वाज फॉर टुडे एंड नथिंग एल्स.
If you guys like this video, then subscribe to my YouTube channel and become a part of my day trading journey. And let's see how this month goes in demo trading. I'll journal everything, I'll keep track of everything, and आई थिंक सो ऊपर जाना चाहिए मार्केट को यहाँ से, एटलीस्ट बिकॉज सी ये एक बहुत ही स्विफ्ट मूव था नीचे का, तो उसी तरीके से मार्केट को एक ऊपर का मूव भी देना चाहिए, सो दैट आई कैन स्कैल्प अ लिटिल बिट। बट अगर ये 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल अगर रिजेक्शन लेती है, देन मोस्ट प्रॉबेबली आई थिंक वील मूव टू द डाउन साइड। सो आई रीसेट माई अकाउंट टुमारो एंड लेट्स सी कल कैसी ट्रेड्स मिलती है। नो नीड टू वरी अबाउट। सो अंटिल देन, टेक केयर।